हेलो एवरीवन। एज यू नो, मैंने रिसेंटली हैरियर ईवी खरीदा है। टाटा इज़ गिविंग एन ऑप्शन टू बाय अ चार्जर अलॉन्ग विद इट ऑफ 7.2 किलोवाट बाय पेइंग 50,000 एक्स्ट्रा, पर मैंने वो ऑप्शन नहीं लिया था बिकॉज आई वांटेड टू गेट चार्जर फ्रॉम आउटसाइड एंड गेट इज इंस्टॉल, जो मैंने अभी रिसेंटली करवाया है। बट पोस्ट दैट आई हैव बीन डूइंग सम रिसर्च टू अंडरस्टैंड दैट whether you really need to get the charger installed at your home. Yeah, EV infrastructure is self-sufficient enough, which you can use to charge your car outside and not have the charger installed in your home. So I've prepared some information on the same. So let's start with the first thing. तो if I talk about अगर आप चार्जर हैरियर ईवी के साथ खरीद रहे हैं तो you have to pay around 50,000 extra for the 7.2 kilowatt charger, and installation charges are additional that you have to pay post that. And the requirement is that you need to have at least 8 to 10 kilowatt meter load. Generally घर में होता है 5 kilowatt का, so you have to get that extended. If you are buying from outside, what I have seen is you get a good charger for around 25 to 40,000, 7.2 to 7.5 kilowatt चार्जर। इंस्टॉलेशन चार्जेस उसमें भी अलग ही रहते हैं और रिक्वायरमेंट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट। नाउ लेट मी टॉक अबाउट हाउ मच आई पेड फॉर द चार्जर। जो मैंने चार्जर लिया था दैट वाज फ्रॉम जेन पॉइंट, अ 7.5 किलोवाट चार्जर फॉर विच आई पेड 29,000 फॉर द चार्जर। फॉर द इंस्टॉलेशन मेरा थोड़ा मीटर से दूर था द इंस्टॉलेशन पॉइंट, so 23,000 was paid for the installation because it was around 30 feet or so. So overall I had paid 52,000 for the installation of the charger. Okay, so इसमें everything was included, so nothing over and above this I had paid. It was just 52,000 that was charged for the whole of the installation. तो अभी मेरा एज यू नो चार्जर इंस्टॉल नहीं था। मैंने एक ही बार अभी तक अपनी गाड़ी को चार्ज किया है एंड आई डन इट फ्रॉम आउटसाइड। तो सम ऑफ द ऑप्शंस दैट आई लुक्ड फॉर, और मैंने अभी तो वैसे BP जियो जो मेरे ऑफिस में है वहाँ से चार्ज किया था। द कॉस्ट देयर वॉज अराउंड 14 रुपीज़ फॉर 7.2 किलोवाट स्लो चार्जर। ओके, the GST is 18% जो you have to pay on the overall bill. There was a 60 kilowatt option as well, the fast charger, for which they charge 21.99 per kilowatt. Again, Glida करके there is a charging company which is nearer, जिस जहाँ पे cost is around 18.94 rupees. And also there is a Shell का charger which is again nearby, which is charging around 25 4 rupees per kilowatt. So I think which is again for a 60 kilowatt charger that they are charging. So all these options are very close to my place, and जो Jio का है that is in the same premise where I work. So it's an easy option for me to utilize any of these chargers. So the kilowatt price may look higher, but when I compare it with what I'm paying at home, okay, for the electricity meter that I've installed, I think इतना कुछ मुझे difference लगा नहीं, because if you see in Pune, generally if I'm consuming from 0 to 100 units, I have to pay around 4.71 rupees per unit, and there's an additional surcharge of around 45. Okay. If I go over 100, 100 to 300, I have to pay 10.29 rupees per unit. Okay, and there's a surcharge of around 0.8, so it comes to around 11 rupees. Around over 301 units, I have to pay 14.55. Generally मेरा consumption रहता ही है around 100 units, तो if I am charging the EV वो 100 के ऊपर ही जाएगा. So roughly I will be paying around 11 रुपीज़ पर यूनिट, विच इज़ लाइक पर किलोवाट. तो अब मैं इसको एक कंसिडरेशन में लेके से इफ़ आई डू अ क्विक मैथ, मैं कंसिडर करता हूँ कि ठीक है, आई एम पेइंग 11.09 पर किलोवाट, ओके, फॉर द चार्जिंग. ओके, जनरली कॉस्ट ऑफ द फुल चार्ज एट होम मेरे लिए आएगा अराउंड 831 रुपीज़. ओके, and if I'm doing it say at a slow charger of 7.2 kilowatt,
मुझे अराउंड 16.52 रुपीज़ देना पड़ेगा इंक्लूडिंग GST, एंड कॉस्ट विल कम अप टू अराउंड 1239 रुपीज़। ओके, अगर मैं फास्ट चार्जर यूज़ करता हूँ विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, ओके, इंक्लूडिंग GST, तो वो अराउंड 26 के अराउंड आएगा, और आई हैव टू पे रफली अराउंड 2000 रुपीज़। नाउ कॉस्ट पर किलोमीटर मेरे लिए फिर होगा, लाइक आई हैव जस्ट कंसिडर्ड, अभी आई हैव रियलाइज पर किलोवाट जनरली whatever I have driven, my Harrier is giving me 5 kilometers per kilowatt. तो उस बेसिस पे कॉस्ट ऑफ रनिंग विल पर किलोमीटर विल कम अप टू अराउंड 2.22 रुपीज़ इफ़ आई एम चार्जिंग एट होम। अगर मैं से स्लो चार्जर यूज़ करता हूँ 7.2 किलोवाट, देन इट विल कम टू अराउंड 3.3 रुपीज़ जो मैं बाहर करूँगा, एंड इफ़ आई एम यूजिंग अ फास्ट चार्जर इट विल कम टू अराउंड 5.19 रुपीज़। तो अगर मैं घर पे चार्ज कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू मे बी अ स्लो चार्जर जो मेरे ऑफिस में है विच आई कैन यूज़, आई विल बी सेविंग अराउंड 1.08 रुपीज़, लाइक 1 रुपया, यू कैन अंडरस्टैंड, पर किलोमीटर। वो मेरा काइंड ऑफ सेविंग हो सकता है इन केस अगर मैं घर पे चार्ज कर रहा हूँ अदर देन डूइंग इट एट माई ऑफिस। ओके, सो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मुझे चेंज दिख नहीं रहा है कि if I am not charging here and I'm not charging if I'm not charging at office, और मैं अगर घर पे चार्ज कर रहा हूँ तो आई एम नॉट सेविंग अ लॉट। और ये डिफरेंस और कम भी हो सकता है से इफ़ आई गो ओवर 300 यूनिट्स इन होम, जहाँ पे मेरा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ के अराउंड 15 रुपीज़ एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, सो वो फिजिबिलिटी का जो रेशो है वो और भी कम हो जाएगा इफ़ आई एम अगर मेरे वो यूनिट्स उसके ऊपर जाते हैं तो इट गोज़ ओवर 300। ओके, तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है कि वेदर इंस्टॉलिंग एट होम एज कंपेयर टू चार्जिंग फ्रॉम आउटसाइड इस ये कितना फीजेबल ऑप्शन है। एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है ऑफ सेटिंग द चार्जर एट होम इज़ कि चार्जिंग टेक्स टाइम, बट देन अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ आई एम देयर फॉर 8 to 10 आवर्स, और 8 से 10 घंटे में आई थिंक कार कैन ईजीली गेट फुली चार्ज, सो आई थिंक दैट कुड बी डन। सो मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ माई थाट, नाउ इफ़ आई एम डूइंग दिस, ठीक है, तो what I've seen is like मेरा ऑलमोस्ट 1 रुपया पर किलोमीटर ही बच रहा है इफ़ आई एम चार्जिंग एट होम रादर देन इन ऑफिस और एनीवेयर एल्स। ओके, इफ़ आई कंसिडर दैट मैंने 52,000 पे किया है फॉर इंस्टॉलिंग दी चार्जर, अगर मैं 1 रुपये पकड़ के चलता हूँ आई विल हैव टू ड्राइव फॉर एटलीस्ट 48,000 किलोमीटर्स, ओके, टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द चार्जर दैट आई हैव पेड फॉर, राइट। और दिस इज़ लाइक जो मुझे घर पे चार्ज कर सकता हूँ तभी होगा। इफ़ आई एम ऑन अ लॉन्ग ड्राइव मुझे वैसे भी बाहर चार्जर यूज़ करना ही पड़ेगा, सो आई एम नॉट श्योर हाउ फिजिबल इट इज़ टू गेट द चार्जर इंस्टॉल्ड एट होम। ओके, देन आई थिंक वो जो स्लैब्स का है, द मोर यू यूटिलाइज दी पावर, ओके, वो स्लैब्स बढ़ते जाएंगे और आपका कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता जाएगा पर यूनिट का, और एंड में जाके भी इट कैन मैच ऑलमोस्ट व्हाट यू आर पेइंग आउटसाइड। ओके, सो आई एम नॉट श्योर कि ये एक फीजिबल इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, एंड शुड यू बी गेटिंग चार्जर इंस्टॉल्ड एट होम अगर आपकी सिटी में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। So my thought is अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि maybe I shouldn't have got the charger installed at home and I could have used the charger from outside, but I am open to hearing from all of you कि आपका क्या thought process है, whether installing the charger at home is better, or if infrastructure is good, you can go ahead and use the EV charging infrastructure जो आपके एरिया में available है। So please comment and let me know your thoughts on this.